Assalamu alaikum everyone. I would like to quickly introduce myself. I am Ikra Javed from MCS First, and other members of my group are Nimra Javed, Ramsha Saeed, Sada Shabir, and Aisha Akhtar. On behalf of Group 2, I would like to present my topic. In this presentation, I will evaluate 7 C's of effective communication. 7 C's of communication is essential in every aspect of our life, whether it be at home, at work, or with our friends. A person who can communicate effectively will always have the advantage when dealing with the people. So, 7 C's का मतलब ये होता है कि अफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए हमें कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करना पड़ता है. अगर हम कहीं पे भी कम्युनिकेट कर रहे हो, लाइक किसी ऑर्गेनाइजेशन में, लाइक फ्रेंड्स के साथ, या कोई भी न्यू पर्सन मिलता है, हम उससे कम्युनिकेट करते हैं. आपने कई बार सुना होगा कि पहली बार हम किसी से मिलते हैं तो हम कहते हैं कि अब वो शख्स आपको अच्छा लगता है, आप उसकी तारीफ़ करते हैं. कई बार मिलते हैं तो कहते हैं कि यार बड़ा अजीब बंदा था, फिर बाद में उसकी बुराई करने लगते हैं. मीन्स के मेन होता है कम्युनिकेशन. अगर कोई इंसान अच्छे से आपसे कम्युनिकेट कर रहा है ना, तो वो डेफिनेटली अच्छा लगेगा आपको. सो we can say that communication skills are necessary for effective communication. As I told you before, 7 C's का मतलब यही होता है. कम्युनिकेशन के कुछ फीचर्स ऐसे होते हैं, अगर उन्हें फॉलो करें तो कम्युनिकेशन जो होती है वो इफ़ेक्टिव हो सकती है. So next, the 7 C's of communication are 7 attributes that you need to keep in your mind while communicating your message. These 7 words or 7 features are starting with the letter C. Look at these words: clarity, conciseness, concreteness, correctness, consideration, completeness, and courteous. These all words are starting with the letter C. So that's why we say these are 7 C's of communication. Okay, so first feature is clarity. Convey your message in an easy to understand manner. मीन्स के जो भी आप बोल रहे हैं, जो भी मैसेज आप डिलीवर कर रहे हैं, वो क्लियर होना चाहिए. नेक्स्ट है यूजिंग शॉर्ट सिंपल सेंटेंसेस वाइल स्पीकिंग और राइटिंग. द एम इज़ टू शेयर योर थाट्स एंड आइडियाज़ विद ऑलमोस्ट क्लैरिटी. मीन्स कि जो भी आप बोलें, जो भी आप बात करें, वो स्ट्रॉन्ग और क्लियर होनी चाहिए. use short sentences in your communication. Avoid difficult words and lengthy sentences in your communication so that message receiver को आपकी बात clear समझ में आ जाए. This is clarity. So simple. And the second point is conciseness. Concise means to be to the point without using a lot of words. Avoid using filler words like you see, etc. Being concise save the time of both you and your reader and add value to your message. Many people use unnecessary words while communicating. Mostly people use words you know, बार बार बोलते हैं you know. They also use sounds like मैं वहाँ गया, मैं वहाँ गया. These all are unnecessary words that affect on our communication. So concise mean talk to the point, avoid unnecessary word. This is conciseness. So next, third attribute or third feature भी कह सकते हैं इसको, is concreteness. Concrete messages clear and usually sport with facts. It gives a laser focus touch your messages. They are details in the message without it being too long. So, create mean your message have facts. फालतू की बातें नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैसेज में ज़रूरी बातें होनी चाहिए. That all are necessary of for your communication. एक एग्जांपल मैं डिस्कस करती हूँ. लाइक मुझे किसी ऐप का ऐड देना है, ठीक है, और वो ऐप मैं कहती हूँ जी टाइम इंडिकेटर है, और इससे ये लिख दिया कि भाई इंडिकेटर डाउनलोड ऐप टू सेव योर टाइम. इतना लिख देती हूँ मैं. अब जो भी पढ़ेगा ना, उसे समझ नहीं आएगी कि कैसी ऐप है, तो वो इसे अवॉइड करेगा और फिर हमारी जो ऐप है वो पॉपुलर भी नहीं होगी. Instead this, if I write
अपने टाइम को बचाने के लिए टाइम इंडिकेटर को अपने साथ रखें। अगर मैं ये लिख देती हूँ ना, तो पढ़ने वाला जो है ना फ़ौरन समझ जाएगा कि ये इंडिकेटर ऐप है और टाइम इंडिकेटर है, तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा, हमारी ऐप भी पॉपुलर होती जाएगी। ठीक है, ये है हमारा कंक्रीटनेस। फोर्थ एट्रीब्यूट इज़ करेक्टनेस। Make sure all your facts and figures are accurate with no grammatical error. Always proofread your work before printing it. So, आप ये ज़रूर चेक कर लें कि जो आप लिख रहे हैं वो बिल्कुल सही है, कुछ भी गलत ना हो, कोई डेट, कोई अमाउंट, कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। और ग्रामेटिकल एरर जो है ना वो तो बिल्कुल भी नहीं गलत होने चाहिए। आप जो बोल रहे हैं, चाहे जो आप लिख रहे हैं, किसी में भी ग्रामेटिकल एरर नहीं होना चाहिए। जब कम्युनिकेशन की बात आती है ना, मतलब ओरल और रिटन दोनों की बात की जाती है कम्युनिकेशन के दौरान। जो भी वर्क आप कम्युनिकेट कर रहे हैं उसको आप प्रूफ रीड लाजमी कर लें। ओके, अंडरस्टैंड? वी आर डिस्कसिंग करेक्टनेस। ओके, एग्जाम्पल एक हम इसके डिस्कस करते हैं। आपने एक रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है या कोई भी लेटर लिखा है तो उसे एक बार पढ़ लें, इससे पता लग जाएगा कि कहाँ एरर है और फिर आप जो है उस एरर की करेक्शन करेंगे। सो दैट आप एरर की करेक्शन करेंगे। ओरल कम्युनिकेशन में आप बोलने से पहले इससे प्रूफ रीड कर लें ताकि पता लग जाए कि जो हम बोलने जा रहे हैं इसमें कोई गलती तो नहीं है, तो ये प्रूफ रीड होगा। ओके, इसलिए कहते हैं कि सोच समझ कर बोलना चाहिए, पहले ही सोच लेना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है। दिस इज कंक्रीटनेस। Fifth point is consideration. Consideration is a simply keeping in mind the audience requirements and views. While formulating your message, consider their level of education, interest and mindset, etc. Consideration का मतलब यहाँ पर ये है कि आप अपनी ऑडियंस का लेवल कंसीडर कर लें, आपकी ऑडियंस कैसी है, इसके बाद आप उनसे कम्युनिकेट करें। ठीक है, अब देखो एक एग्जांपल लेते हैं। किसी कॉलेज के प्रोफेसर जो हैं, कोई भी कॉलेज ले लो, उसके प्रोफेसर जो हैं सेमिनार में आते हैं तो उन्हें पता होता है कि यहाँ के स्टूडेंट कैसे हैं। मीन्स वाइल कम्युनिकेटिंग विद ऑडियंस कंसीडर देयर माइंडसेट लेवल ऑफ एजुकेशन एंड इंटरेस्ट। वो जो प्रोफेसर हैं उनके माइंडसेट लेवल को, उनकी एजुकेशन को और उनके इंटरेस्ट को मद्देनज़र रखते हुए, माइंड में रखते हुए उनसे इंटरेक्ट होंगे, उनसे कम्युनिकेट होंगे। दिस इज़ कंसिडरेशन। नेक्स्ट है कंप्लीटनेस। अ कंप्लीट मैसेज गिव द यूज़र ऑल द इंफॉर्मेशन एंड इज़ क्लियर एंड डिटेल। व्हेन योर मैसेज इज़ कंप्लीट योर ऑडियंस नो व्हाट एग्जैक्टली नीड टू बी डन। This is our sixth attribute of 7 C's of communication. I'll give you one example of this. आप अपने फ्रेंड्स को डिनर पर इनवाइट करते हैं, लेकिन फ्रेंड्स को पता नहीं होता कि कितने बजे आपने डिनर पे उन्हें इनवाइट किया, 9 बजे, 10 बजे, कितने बजे, कंफर्म नहीं है। तो इसलिए मैसेज कंप्लीट होना चाहिए। जब भी आप मैसेज डिलीवर करें ना तो पूरी बात करें, पूरा मैसेज दें। कंप्लीटनेस मतलब कंप्लीट होनी चाहिए बात हमारी, डिटेल डिलीवर करनी चाहिए ताकि मैसेज रिसीवर को बात समझ में आ जाए। ये है कंप्लीटनेस। बहुत इजी है 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। 7th पॉइंट इज courteous. Always be friendly and honest. Respect the speaker while you communicate, even if you have some feedback that need to be conveyed in a constructive manner. Courteous means अगर आपको अपनी कोई बात कहनी भी है तो आप उसको एक अच्छे वे में कहिए कि दूसरा आपकी बात सुनकर कन्विंस हो जाए। हमेशा फ्रेंडली और नेचर रखनी चाहिए। आप मैनेजर हैं या किसी भी लोअर पोस्ट पे हैं, हमेशा आपको गुड बिहेव, फ्रेंडली नेचर रखनी चाहिए। योर बिहेवियर एंड कम्युनिकेशन मस्ट बी गुड। आपका बिहेवियर और आपका कम्युनिकेशन गुड होना चाहिए। These all 7 attributes give good effect to your communication. That's it.